going to talk about the eating habits and nutrition of kids these days. Before starting the video, thank you very much for joining in who has joined. And yes, there is there we are going to talk about the healthy breakfast, but before that I think we there is very much requirement for to talk about the healthy and nutritious food and the habits. So let's talk about a bit of eating habits and nutrition of kids. First of all, we have to get rid of the high chair that we are making our kids sit, and we should not be asking them to sit on a high chair, because that will definitely not help them to open their pelvic hip, and will definitely get the back issues and knee issues later on in their later life. Also, always ask them to eat with their hands, because that is very much important. If you ask them to eat with fork and knife, that is okay, but yeah, initially let them just create the mess and let them do whatever they want to do initially. Next comes the nutrition that is required is stop plastic, because that is something which is not required, and that is one of the cheapest thing that we can use, right? Plastic is not something which we have to give to our children. So instead of that, you can give the normal copper, steel, and your wooden plates that is very much available these days. So you can give them those utensils to eat. There is one more thing about the nutrition which I have always and already talked about in my previous videos on nutrition, that never ever say that तुम्हें इतना ही खाना है क्योंकि तुम्हें कैल्शियम की ज़रूरत है, तुम्हें दूध पीना है क्योंकि तुम्हें कैल्शियम की ज़रूरत है, तुम्हें दाल खानी है क्योंकि तुम्हें प्रोटीन की ज़रूरत है. डोंट गिव योर चिल्ड्रन कि तुम्हें इतना ही खाना है. नेवर टेल द चाइल्ड अबाउट द न्यूट्रिएंट्स अबाउट द फूड, राइट? ये बोल के आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ उनका चाइल्डहुड उनसे छीन रहे हो, बिकॉज दे आर अलाउड टू ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. जो उनका मन आता है वो उन्हें खाने दिया जाना चाहिए. So yes, they should not be restricting themselves कि मुझे सिर्फ एक कटोरी दाल आज खानी है, या मुझे सिर्फ एक चम्मच घी लेना है. घी से लेके दूध से लेके जो उनका मन है. Yes, there are restrictions that they should not be eating junk. They should be if they are interested in eating chips and chocolates, वो थोड़े लिमिट मात्रा में उन्हें देनी चाहिए, ना कि जस्ट पैकेट ला के उनके सामने रख दिया. मैंने देखा है बहुत बार. इवन माई चिल्ड्रन, माई किड हु इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, बिकॉज अभी तक मैंने उसे चिप्स बहुत ज़्यादा नहीं दिए हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, बट ही इज़ फॉन्ड ऑफ चॉकलेट. सो आई इंश्योर कि मैं पैकेट पूरा ला के रख दूँ, बट आई हाइड इट समवेयर. आई जस्ट गिव हिम वन चॉकलेट, अ स्मॉल पीस ऑफ चॉकलेट, या जब उसका मन करता है दे देती हूँ, बट आई नेवर स्टॉप हिम कि तुम्हें नहीं खाना है. Instead, I haven't developed that taste of junk food in his taste buds. I ensure कि उसे मैं घर का खाना दूँ, जितना भी दे सकते हैं. हलवा, दाल, मीठा खाना है तो कोई भी हलवा बना के दे दिया, लड्डू बना के दे दिए. So we can just give all those good nutritious food to our kids. बच्चे दूध से क्यों भागना शुरू करते हैं? रीज़न बीइंग कि हम उनके पीछे पड़े रहते हैं. तुम्हें दूध पीना है, तुम्हें दूध पीना है, तुम्हें दूध पीना है. सो वो दूध वाला जो घोस्ट उनके दिमाग में आ जाता है, that made him or made them to not to drink दूध. So please don't force them to eat anything. Whatever they ask for, you can ask them to eat mutton in a limited quantity, right? So now coming to the healthy breakfast. What is healthy breakfast? If you can write into the comment section, I'll be more than happy. What do you understand by healthy breakfast for kids? I'm waiting for next 30 seconds. If you can write in the comment section. Anyone who is looking at the video can just tell me what do they understand. मेरे लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट भरपूर अच्छा खाना खाना सुबह सुबह, जिसमें बहुत सारा मुझे एनर्जी मिले फॉर द लेटर डे और फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, राइट? दैट इज़ व्हाट वी बिलीव दैट इट हैज़ टू बी हेल्दी ब्रेकफास्ट. बट अगर आपने साइंटिफिकली देखना है तो 5 तरह के हमारे फूड ग्रुप्स होते हैं, विच इज़ ग्रेन्स, डेयरी, प्रोटीन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. इन 5 फूड ग्रुप में इनको कोई भी 3 तरीके या 3 फूड ग्रुप ब्रेकफास्ट में खाने चाहिए. अगर तो वो ग्रेन्स और डेयरी का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, दैट मीन्स उन्हें पराठा दे दीजिए ग्रेन्स में,
ओट्स दे दीजिए, कॉर्न्स दे दीजिए, बार्ले दे दीजिए, राइस दे दीजिए. अगर डेयरी का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, दे कैन हैव एनीथिंग इन डेयरी लाइक चीज़ एंड दूध, दही. और अगर प्रोटीन्स खाना चाहते हैं, दे कैन हैव सॉसेजेस, दे कैन हैव चिकन, दे कैन हैव एग्स इफ दे आर फॉन्ड ऑफ I mean this what do you call it, chicken and all. But if they are vegetarian, they can have dal chillas, they can have all the lentils mixed chillas. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कि शायद हमें अपने बच्चों को डेली देना चाहिए. आई हैव बीन हेयरिंग अ लॉट कुछ फ्रेंड्स से जो बोलते हैं कि फ्रूट्स हाँ एक हफ्ते में एक बार खा लेंगे या 2 हफ्ते में कुछ दिन खा लेंगे. आई बिलीव दैट 3 तरह के फ्रूट्स बच्चों को 3 डिफरेंट टाइमिंग्स में देने हैं. एक साथ सारे फ्रूट नहीं खाने हैं. एक मॉर्निंग में दे सकते हैं, एक इवनिंग में, और एक आप दोपहर में दे सकते हैं. सो 3 तरह के फ्रूट्स देना बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को. सो येस, कीप वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर माइंड दैट 5 फूड ग्रुप्स में से 3 फ्रूट ग्रुप आपको देने ही देने हैं अपने बच्चे को हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए. और वो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, कौन से 5 फूड ग्रुप्स हैं? ग्रेन्स, डेयरी, प्रोटीन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. राइट इसके लिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा मुशक्क़त नहीं करनी है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है उसमें हर एक ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है. इफ़ यू गो टू नॉर्थ, you will find a lot of paranthas, stuffed paranthas with white butter. I would prefer white butter instead of the salted butter or या table butter या अमूल का बटर जो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं. Second is that अगर आप किसी भी नानी या दादी या मम्मीज़ को देखें हमारे, तो सुबह सुबह हमें होम कुक्ड ब्रेकफास्ट मिलता था. आजकल वी आर मूविंग टूवर्ड्स द वेस्टर्न ब्रेकफास्ट एंड लिविंग आर ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट. आप साउथ चले जाइए, आपको बहुत अच्छे ब्रेकफास्ट मिलेंगे, इडली, डोसा, सांभर. अगर आप नॉर्थ में आ जाइए, परांठास मिलेगा. अगर आप कलकत्ता चले जाए, वहाँ पे आपको कुछ और मिलेगा. अगर आप मुंबई चले जाए, महाराष्ट्र चले जाए, आपको वहाँ पे पोहा, ये सब ब्रेकफास्ट मिलेगा. इवन आई लव द गुजराती ब्रेकफास्ट विच इज़ वेरी 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 यमी. ओके, फाफड़ा, थेपला, ढोकला इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, माई किड फेवरेट ऑल्सो. सो ये सब ब्रेकफास्ट हम छोड़ के हम वी आर गोइंग टू बॉक्स्ड. बच्चे को कॉर्नफ्लेक्स दे दीजिए, बच्चे को अपने बॉक्स्ड सीरियल्स दे दीजिए. वी आर नॉट here to give our children these western breakfast or boxed cereals. This is not healthy. This is at all not healthy. So yes, first thing is always start home cooked breakfast daily, because ये जो marketing industry है, they have made a myth कि breakfast skip करो और healthy हो जाओ. सॉरी, इट इज़ नॉट लाइक ऑलवेज. अगर ये होता तो हमारी नानी दादी हमें कभी ब्रेकफास्ट ना ही देते, बिकॉज उनके लिए सिर्फ एक ही एजेंडा होता था, अपने बच्चों को हेल्दी बना के रखना. सो येस, दे ऑलवेज यूज टू टेल अस दैट ब्रेकफास्ट हैज़ टू बी हेल्दी. ब्रेकफास्ट हैज़ टू बी लाइक हार्टी ब्रेकफास्ट, बहुत ज़्यादा, ताकि आप अगर दोपहर तक अपने एनर्जी साथ लेके चल सकते हैं. सेकेंड, आजकल के पेरेंट्स हैव स्टार्टेड गिविंग started not only giving but started skipping the breakfast. क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मिथ है कि आप ब्रेकफास्ट स्किप कीजिए, आप इतनी देर फास्टिंग कीजिए. बट रिमेंबर, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इवन कि बड़ों के लिए भी. आई बिलीव अगर आप पूरी रात 12 घंटे अपने बच्चे को सुला के, यानी कि दे आर डूइंग एक्चुअली एन ओवरनाइट फास्टिंग, और अगर मॉर्निंग में उन्हें ब्रेकफास्ट ना दें, देन हाउ वुड यू फील? आई मीन, इफ आई टेक माई एग्जाम्पल, इफ आई जस्ट गो over and beyond fasting period of 12 hours, I feel like I'm having a hunger pangs in my tummy. So yes, hunger pangs तो छोड़िए, बच्चों के hunger pangs बताने का भी टाइम नहीं मिलता है. So what I do, the moment my kid wake up, within 30 minutes I give him a glass of milk. उसके बाद अगर हमारा ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट हो जाता है, yes नेहा, hi, okay. Neha, your question is very valid, which has been asked by many mothers also in other group, which I have been following and which I have been giving answers to. So उस group में भी यही बोला गया है कि हमारा बच्चा 1-1.5 साल का है and they refuse to eat. What I believe that children के भी taste buds होते हैं. So if they refuse to eat, that means हमारे खाने में कुछ कमी है, right? Either we are making it too spicy or we are making it too bland. सो खाना उनके अकॉर्डिंगली, उनकी टेस्ट के अकॉर्डिंगली दिया जाना चाहिए. जस्ट फाइंड आउट दैट व्हाट शी लाइक्स, एंड शी इज़ वेरी अडोरेबल बाय द वे.
सो उसे क्या पसंद है, इफ शी इज फॉन्ड ऑफ समथिंग वेरी स्वीट, यू कैन मेक होममेड हलवाज, होममेड लड्डूज, होममेड, आजकल बहुत ज़्यादा उसे स्मूदीज बना के दे सकते हो, स्ट्रॉबेरीज का टाइम है. And diet chart, Neha, I'll just after this I'll send it you the diet chart for 1 to 2 years, and I hope that will help. और अगर आपके बच्चे को नमकीन पसंद है, यू कैन गिव देम चिल्लास. मैं अपने बच्चे की अगर रूटीन बताऊँ 1-1.5 साल तक जो मैंने फॉलो की है, वंस ही वेक अप आई यूज टू गिव हिम दूध, ठीक है. उसके बाद आई यूज टू गिव हिम सोक्ड रेजिन्स, क्योंकि बादाम और कैश्यू he won't be able to, he was not able to eat because उसने दांत ही अपने 13 महीने में निकाले हैं. And after that I used to give him eggs, because egg अगर उसे heavy breakfast लगता था तो then I used to give him boiled eggs. I remove the yellow part and I just give him the boiled eggs. अगर वो egg नहीं खाता था तो small चपाती घी में बना के अच्छे से उसे घी में गूंद के ऊपर घी डाल के. Okay, one thing, अगर आप उसे घी वाली रोटी दे रहे हैं, don't फ्राई इन घी, जस्ट मेक अ ड्राई रोटी और उसके ऊपर घी डाल के उसे हल्के से, जो हमारे पंजाबी में बोलते हैं चूरी, सो वो खिला सकती हो स्मॉल स्मॉल. एंड जस्ट आई मीन डोंट रन आफ्टर हर, जस्ट गिव हर रोल करके, शी कैन ईट एंड शी विल लर्न द ईटिंग हैबिट्स ऑल्सो. देन व्हाट आई यूज टू गिव आफ्टर दैट, वंस ही टेक अ शावर आफ्टर ब्रेकफास्ट, आई यूज टू गिव हिम होममेड जूस. जो भी सीजन होता था उसे जूस मैंडेट था देना, चाहे वो छोटा सा कप क्यों ना दूं, बट वो होता था. एंड आफ्टर दैट लंच के बाद ही यूज टू स्लीप फॉर 2 hours, और उठ के उसे स्नैक्स दिए जाते थे या फिर चिल्ला दिया जाता था. नाउ ही इज फॉन्ड ऑफ पैनकेक्स, उसे पैनकेक बना के देती हूँ. एंड रात को हल्का सा ब्रेकफास्ट, विच इज़ अगेन रोटी दाल सब्जी, जो भी वो खाती है. जस्ट मेक अ डेली स्केड्यूल ऑफ ईटिंग एंड आई एम श्योर शी विल स्टार्ट ईटिंग. एंड आफ्टर दिस डेफिनेटली आई सेंड यू द चार्ट विच विल डेफिनेटली हेल्प यू. You can ask any other question if you have also. So we were there that what we were giving. आजकल के parents first thing that they used to give the breakfast for kids and expecting to healthy. Please अपने बच्चों का breakfast ना skip करवाएं. Second, अपने बच्चों को boxed breakfast. I'm sorry to say, but आजकल होता क्या है, अपना टाइम सेव करने के लिए, though we are working, so हम ओट मील फटाफट बना के दे देते हैं. अगर आपको ओट्स अपने बच्चे को खिलाने भी हैं, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ बाजार जाइए, चक्की पे ओट्स पिसवा के लाइए, रादर देन टेकिंग दैट पैक्ड ओट्स वाला. दैट इज़ हार्मफुल, ट्रस्ट मी, दैट इज़ हार्मफुल. सो एंड आई वुड से हमारे ट्रेडिशनल खाना ही इतना ज़्यादा है कि हम वही दे सकते हैं, रादर देन रनिंग आफ्टर दिस ओट्स एंड all that jazz. You can just give them paranthas, give them kids breakfast as per your region, as per your tradition, as per your state, whatever. Second, लैक्टोज इंटॉलरेंट. हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा लैक्टोज इंटॉलरेंट है, उसे दूध नहीं पच रहा है. कहाँ से पचेगा उसे दूध अगर आप उसकी बॉडी में पूरे न्यूट्रिएंट्स ही नहीं देंगे. उसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स के लिए आपके बच्चे को एनर्जी भी उतनी ही चाहिए, इसलिए उसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स. व्हाट वी आर डूइंग दीज डेज, 1 कटोरी दाल, 1 चम्मच घी, 1 चपाती से ज़्यादा नहीं खानी है. लीव देम, जस्ट लीव देम फ्री टू ईट वट एवर दे वॉन्ट टू ईट. घर पे अगर वो खोल के भी खा रहे हैं आपका फ्रिज और अलमीरास, लेट देम ईट. कुछ नहीं होगा, जितना वो एक्टिविटी करते हैं उससे कहीं ज़्यादा उन्हें खाना चाहिए, क्योंकि आपका कैल्शियम जो हम वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो हम सोचते हैं कि बच्चे को 1 कटोरी कैल्शियम देना है तो उसके लिए पूरा हो गया. आपने बच्चे को कैल्शियम दे दिया है, बट वो कैल्शियम ब्रेक डाउन कैसे होगा? उसे ब्रेक डाउन और असिमिलेट करने के लिए बच्चे का खेलना कूदना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद वो वाला न्यूट्रिएंट अनलॉक करता है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर बच्चे को 1 कटोरी दाल दे दी या 1 गिलास मिल्क दे दिया तो हमने बच्चे को अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे कर दिए. वो तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक आपके वो न्यूट्रिएंट्स अनलॉक नहीं होंगे. और वो अनलॉक कैसे होंगे? व्हेन योर किड विल बी एक्टिव एंड व्हेन योर किड विल डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज, तब उसके न्यूट्रिएंट्स जाके ब्रेक डाउन होंगे. सो येस, गिव देम वॉट एवर दे वॉन्ट टू ईट. दिस इज नॉट द एज दैट दे हैव टू थिंक अबाउट कि मुझे इतना खाना है, इतना नहीं खाना है. ऑल्सो आई हैव सीन लैक्टोज इंटॉलरेंट पे वापस आते हैं कि डॉक्टर के पास, आई रिमेंबर आई हैव बीन टू अ डॉक्टर जहाँ पे एक लंबी लाइन, जिसमें आधे से ज़्यादा बच्चे मदर्स यही बोल रही थी कि मेरा बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट है, डॉक्टर मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंट का पाउडर दीजिए, ऑल्टरनेट दीजिए. सो येस, लैक्टोज इंटॉलरेंट के लिए हमारे पास बहुत अच्छा एक उपाय है, गिव देम घी. जिन बच्चों को लैक्टोज की प्रॉब्लम है या वो इंटॉलरेंट है, आप उन्हें घी दे सकते हैं. बट
अगेन स्टॉप गिविंग देम सोय मिल्क, आलमंड मिल्क, ये सब फूड इंडस्ट्री का एजेंडा है, ताकि आप अपना दूध जो लोकल डेयरी फार्म से आता है उसे छोड़ के आप ये पैक्ड फूड्स लें. दे आर नॉट, आई मीन जो दूध उबालने के बाद भी फट सकता है विद इन 24 आवर्स, वो कार्टन में कितना सेफ होगा. सो आई वुड रिक्वेस्ट अपने पास वाले डेयरी फार्म में जाके दूध जो डेयरी फार्म से डेली आता है वो लीजिए, बिकॉज दैट इज हेल्दी, दैट इज समथिंग दैट यू शुड बी गिविंग टू योर चिल्ड फॉर प्रॉपर कैल्शियम एंड फॉर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स. Good breakfast definitely that help you tackle micronutrients deficiency. आप अपने अच्छे ब्रेकफास्ट में बच्चे को आयरन, फॉलिक, विटामिन्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को असिमिलेट करने की शक्ति देते हैं, इसीलिए आपको अच्छा खाना खाना ज़रूरी है, राइट? ओके, देयर आर अदर क्वेश्चंस व्हिच आई एम रिसीविंग. ओके, एंड व्हाई ब्रेकफास्ट इज इम्पॉर्टेंट? फर्स्ट, आपके बच्चों के लिए हेल्दी वेट मेंटेन करके रखता है. रिसर्चेस बहुत सारी शो करी है. अभी इन लंदन देयर वाज अ रिसर्च कि जो बच्चे ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं दे आर मोर लाइकली टू प्रोन टू हार्ट अटैक्स और हार्ट डिजीजेस लेटर इन देयर लाइफ. सो येस, उनके पास दे आर मोर प्रोन टू ओबेसिटी ऑल्सो एंड ओवरवेट ऑल्सो. सो प्लीज़ अपने बच्चे को अगर आपने हेल्दी वेट देना है, गिव देम अ प्रॉपर breakfast. That means from those 5 food groups you have to give them 3 food groups. Okay, then comes it provides energy and essential nutrients. आपके बच्चे को जो भी एनर्जी मिलती है दैट इज बिकॉज आप अपने बच्चे को ब्रेकफास्ट में विटामिन्स दे रहे हैं, फोलेट दे रहे हैं, आयरन दे रहे हैं, फाइबर दे रहे हैं, तभी आपके बच्चे को एनर्जी मिलेगी और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे. अदरवाइज ही इज जस्ट लाइक एन एम्प्टी बॉक्स which will work only for some time, but later he will be, what do you say, he will be empty. It also help alertness, it also help in the concentration, mental performance, moods and memory. हमारे बच्चे का ब्रेन डेवलप जो होता है दैट इज बिटवीन 2 to 5 years, उसका मैक्सिमम ब्रेन डेवलप हो चुका होता है. सो इन दैट केस यू हैव टू गिव देम अ प्रॉपर ब्रेकफास्ट जो कि बच्चे की कॉन्सेंट्रेशन पूरा दिन वो फिजी ना फील करें और ब्रेन को स्टार्व ना करें, बिकॉज दैट इफ ब्रेन स्टार्व्स फॉर एनर्जी एंड it will definitely take your body as a fuel rather than taking the nutrients as a fuel. So उन्हें grainy breakfast, cereals, fruits, milk जो आपके यहाँ बनता है वो देना शुरू कीजिए. Yes, also it also helps in keeping your blood sugar level in check. That means आपके डायबिटीज़ और आपके ब्लड शुगर जो है वो लेटर नहीं होगा. दैट इज़ नॉट ओनली इन द केस ऑफ बच्चाज ओनली, किड्स ओनली. यू हैव टू हैव एटलीस्ट अपने लिए भी आपको उतने ही अच्छा ब्रेकफास्ट करना चाहिए. आई एम सॉरी टू से बट वेट लॉस करने के लिए ब्रेकफास्ट स्किप करना इज समथिंग जो आई फील लाइक इज नॉट समथिंग दैट वी शुड अडॉप्ट, राइट? IF आजकल बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, दैट मीन्स इंटरमिटेंट फास्टिंग. बट इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि आपको अर्ली डिनर करना है. अगर आप 12 घंटे 14 घंटे के लिए फास्टिंग कर रहे हैं, यू हैव टू स्टार्ट इट अर्ली, एज अर्ली लाइक 6 o'clock और 7 o'clock, और मॉर्निंग 6, 7, 8 तक कर लें ताकि आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप ना करें. एंड यू शुड बी हैविंग ऑल 3 meals इन योर इंटरमिटेंट फास्टिंग ईटिंग पीरियड ऑल्सो. सो येस, आपके बच्चे को उतना ही ज़रूरी है खाना खाना. Okay, there is one more reason which I have mentioned in my previous nutrients वाली वीडियो में, that why should we not skip our breakfast, no matter for kids or no matter for the adults. It is because जब हम रात को फास्टिंग करके उठते हैं, we are fasting जिसमें हमारे cortisol, that means the stress hormone, which is already high, right? वो already high होता है, और अगर हम पूरा दिन या ब्रेकफास्ट जितना लेट करें या स्किप करें, हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स उतने ही हाई होते जाते हैं, विच रिजल्ट्स इन क्रैंकीनेस इन द किड्स. टैंट्रम्स बहुत ज़्यादा दिखाना शुरू हो जाएंगे, पूरा दिन वो रोते रहेंगे या विदाउट एनी रीज़न वो रोते रहेंगे. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स फॉर नॉट हैविंग ब्रेकफास्ट इफ़ यू आर नॉट गिविंग दैट ब्रेकफास्ट टू योर किड्स. सो येस, प्लीज़ अपने बच्चों को हेल्दी ब्रेकफास्ट दें. एंड
लोकल ब्रेकफास्ट दें, डोंट गो फॉर ओट्स देने हैं, मुझे ब्रेड ये देना है या कुछ भी वेस्टर्न ब्रेकफास्ट देना है। जो आपके घर पे रोज़ बनता है, सिंपल सरल अच्छा वाला खाना, वो अपने बच्चों को दें। एंड आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग घी वाली रोटी इन द मॉर्निंग, एंड टिल डेट हमारे घर पे वही बनती है। आई मीन अगर कुछ और ऑप्शन ना हो तो आई मेक घी वाली रोटी। एंड my mother also, I mean she never used to send me, my brother, my family without breakfast। अगर हम घर से बाहर जाते हैं तो उनका ये होता था कि नहीं कुछ तो लेके जाओ, कुछ तो खा के जाओ, बिकॉज एम्प्टी स्टमक यू आर मोर ससेप्टेबल टू योर डिजीजेज एंड स्पेशली इन द हॉस्पिटल्स। अगर आप हॉस्पिटल सुबह जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, प्लीज ट्राई एंड ईट बिफोर स्टेपिंग आउट ऑफ योर होम, right? Anything else? If you have any questions, guys, you can just mention here. I'll be waiting, and I hope that this session make some sense to you all. If yes, please let me know. If no, definitely then also give me feedback so that I can improve it next time also. And I'm hoping that Sugar Plum is helping you in a lot of parenting tips also. अगर आपको कोई भी query है, guys, don't hesitate, because what I have been noticing on Sugar Plum community and page that people are asking me a lot of questions, but personally asking. That is absolutely fine. I mean, it's a page meant for you only, and my vision is to help 5,000 mothers to live a holistic and smooth life, because I know I have been through a very tough time after pregnancy, because there was no support system. There was no one. My mother and my in-laws, they used to come and go. They were not constant support system. I was juggling between office, bacha, ghar, and family. So I know, and I have also suffered a lot in my previous organization when I was pregnant in my last months. So yeah, I was not blessed with very good boss. So he was what I should say, he was, I mean, asking me to work like 14-15 hours every day, which was taking a toll on my body. And yes, I was at the verge that I had to leave my job, but I didn't, because again, I think I should fight for every problem. So इसीलिए that very point of time, I mean, my vision of my Sugar Plum is that I have to, if in case in future, if I'll open my company or if I'll do any sort of organization, my Sugar Plum family of that company, 90% would be moms. I mean, that is my vision कि next 5 साल में अगर मेरी कंपनी कभी खुलती है तो उसमें 90% मेरी न्यू मॉम्स, टू बी मॉम्स या कोई भी मॉम होंगी, that will be there. And second is I have to help 5,000 moms. That is my mission statement for Sugar Plum. So please let me know if you have any questions, if you have any queries, if you want any support, I am always there for you. So that's it for today. I hope you like this session, and please provide me the feedback if you have any, and please be participative on Sugar Plum community and Sugar Plum page. Thank you very much for joining in. Love you all.